Hello, good evening, Assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 in India. And the news out of Mumbai is that South Africa has decimated the defending champions England. And wow, what a game of cricket have we witnessed. What outstanding batting have we seen. We're going to talk about all of that right now. With me in the Pavilion, I've got four outstanding cricketing minds, four former captains of Pakistan. I've got the young, dynamic and dropping pearls of wisdom, Shoaib Malik. Shoaib, welcome. Thank you. Good evening and Assalamu alaikum, everyone. With that, Mr. Dependable, the man holding together Pakistan's batting order whenever it went out of order. I've got the most successful test captain of Pakistan's test cricket history, Misbah. Misbah, assalamu alaikum and welcome. Walaikum assalam. Thank you, Janab. बहुत शुक्रिया आपका बड़े fresh लग रहे हैं. And with that, the man with the 8 crooked fingers and 2 straight thumbs, the silver fox of the Pavilion, one of the finest wicketkeepers of Pakistani cricket, a great captain and a man of crisis, Moin Khan. Moin, assalamu alaikum. Walaikum assalam, Fakhar. कैसे हैं आप ठीक हैं? Looking good, buddy. Assalamu alaikum, everyone. And cricket royalty in the house, the Sultan of Swing, the undisputed king of all-rounders, a very fresh and minty Wasim Akram. Wasim, welcome and assalamu alaikum. Assalamu alaikum everyone. And with that, let's get cracking. आज दो बड़े मुकाबले हुए. सबसे पहले तो आपको मुंबई वाले मैच की मैच समरी दिखाते हैं. साउथ अफ्रीका बामुकाबला इंग्लैंड. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया. क्या ये फैसला दुरुस्त था? क्योंकि सिर्फ 229 रन के मार्जिन से साउथ अफ्रीका जीती है ये मैच. पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने 399 रन किए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे. And man, what outstanding batting did we see from the South African batters, especially that Klassen century that would be remembered. And let's not forget what Hansen brought to the ground as well. It was just fantastic. English bowlers, they did not have any answers for the South African batters. In reply, the English batters had no answers for the South African bowling. In the end, South Africa winning that one with 229 runs. There is a lot to talk about that. So ये था match. South Africa को बहुत-बहुत मुबारक हो. The defending champions England must be hurting. उससे पहले आज एक और मैच मुकाबला हुआ था. दोपहर को 1:30 बजे शुरू हुआ था लखनऊ से. उसके अब मैच समरी आपकी खिदमत में पेश करते हैं. ये मैच था श्रीलंका और नेदरलैंड्स के दरमियान. इसमें नेदरलैंड्स ने पहले बैटिंग की. 262 रन उन्होंने जोड़े 49.4 ओवर्स के अंदर. मधुशंखे एंड रजीता देर टेकिंग अप 4 विकेट्स ईच. एंड इन द रिप्लाई श्रीलंका bringing this one home, 263 for 5 in 48.2 overs and looking good. So congratulations to all the Sri Lankan fans around the world. That was a much deserved victory. But Netherlands, one time they collapsed, but they made a great comeback and they eventually put up that very, very competitive score. And with that, it's time for the points table. और ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर points table. Look at that points table. New Zealand sitting up top with 1.92 net run rate, but 8 points. Trailing them, India, 4 games, 4 wins with 1.66, and that difference is not going to be there for very long because India looks really, really good, but so does New Zealand. But look at that, what's happening there. South Africa climbing up there, and look at their run rate. That's a 2.21 net run rate. They are there with a lot of points and looking really, really good. Australia also climbing to the 4th position. Pakistan slipping to 5th. Bangladesh there on the 6th position. Netherlands 7th. And it's Sri Lanka, England. Ooh, England not looking good at all. Defending champions at number 9. Only trailed by Afghanistan. Yaad rahe ke top 4 teamein semi-final khelegi. And that's how your points table is looking. All right, Wasim Baji. Yes. Ijazat hai? Ijazat. All right, let's start off. England winning the toss and electing to bowl. Why? यूजली हमने देखा इस वर्ल्ड कप में मोस्टली टीमें ये करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आप ग्राउंड के स्टैट्स देखें या सुने, मोस्टली होता है कि एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इज़ 280. बट सो फार जो हमने इस वर्ल्ड कप में देखा है, इफ़ यू बैट फर्स्ट यू गॉट टू गेट टू 350. एंड माय साउथ अफ्रीका, what a batting, probably blessing in disguise, maybe not a good thing to say, but that's what it was today. They looked a different side altogether because I believe the current captain had a fever. Yep. And they played this guy called Reza Hendricks, who played incredible innings with this extra player जिसने आज 85 किए 75 है. I think now South African team looks fine, and I thought they'll play Samshi, but Kotsi bowled really well as well. And in batting from the get-go, it was a good pitch to bat on. Venkateka sabko pata hai. But
जी मिसबा, प्लीज कंटिन्यू, यू कैन कमेंट ऑन दैट। एक्सीलेंट इनिंग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप बेंच पे बैठे हैं और अचानक आप आते हैं और आपकी बैटिंग से कहीं नज़र नहीं आ रहा। इतनी कॉन्फिडेंट शॉट्स जो हम हमेशा बात करते हैं कि जिस किस्म के शॉट्स खेले और जिस फ्रीडम से खेले और जिस मैच्योरिटी से खेले, तो इससे अंदाज़ा होता है किसी टीम की स्ट्रेंथ का कि आपके जो बेंच पे लड़के हैं वो इतनी फॉर्म में है, वो इस तरह के प्लेयर हैं। किस तरीके से डोमिनेट किया। इवन मार्क वुड की वो पेस थी, उसको भी जिस तरीके से वो खेल रहे थे और उस सिचुएशन में एक ऐसा स्टार्ट दिया उन्होंने कि बिल्कुल इंग्लैंड को अंडर प्रेशर कर दिया। क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो पिचेस हैं वो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा तेज़ हैं दुनिया में। ऑस्ट्रेलिया में बाउंस ज़रूर है, लेकिन साउथ अफ्रीका की पिचेस सही, मतलब जहाँ चिप्स की तरह बॉल आता है वो हैं। इसीलिए आप देखें पेस ने बिल्कुल तंग नहीं किया। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली है, जिस तरीके से साउथ अफ्रीकन इस टूर्नामेंट में स्पिन को खेल रहे हैं, इनसाइड आउट शॉटें 2 छक्के मारे हैं उन्होंने। दैट वाज समथिंग। आई मीन आप माकरम को भी देख रहे हैं, इनको भी देख रहे हैं, और नॉट अ सिंगल टाइम के गुगली मिस रीड किए उन्होंने। जितनी दफ़ा राशिद ने बॉल किया उनको, पूरा वो हाथ से निकलते ही उस तरफ जा रहे थे जिस तरफ बॉल ने आना है। तो दैट इज समथिंग वेरी इम्प्रेसिव। ऑल्सो नोटिस दैट पेस, we talk about dialogue आजकल निकला हुआ है, pace is pace यार, but that's proving it bit wrong in this tournament. I mean, look at the quickest bowler in this World Cup so far, one of the quickest in fact. Mark Wood went for 76 in his 7 overs, no wicket, 10.85 run rate. जब का मेन बॉलर वही मिसबा बता रहा है कि टेक्निक वाइज फास्ट बॉलर हो, मीडियम पेसर हो, स्पिनर हो, अटैकिंग खेल रहे हैं, दे जस्ट गोइंग फॉर इट मैन। एंड विद, आई मीन लुक एट दैट गाय क्लासन, हेनरिक क्लासन, इन माय ओपिनियन he is the best white ball mid order batsman in the world at the moment. That is a very difficult position to bat at, number 5. Usually either you are batting at last 10 or either 3-4 wickets are down, and look at the shots he played. ये AB डिविलियर्स की अब कमी जाके ख़त्म हुई है इस इनमें साउथ अफ्रीकन में। इवन AB डिविलियर्स जो थे वो भी यही बोल रहे थे, ही वाज प्रेजिंग हिम। और मज़े की बात ये है कि सबसे मुश्किल शॉट होता है ये जो शॉट खेला उन्होंने ओवर मिड ऑफ, जहाँ का बॉल हो उसी तरफ खेलते हैं। और आई गेस ये देखें, ये लो फुल टॉस को इस तरह 6 मारना, फिर ये चौका मारना, रिवर्स स्विंग होके अंदर आया बॉल, और उसके बाद उनकी सेलिब्रेशन। सो इट शोज दैट ही वाज फुली इन्वॉल्व्ड, ही वाज गोइंग आफ्टर द बॉलर। और ऐसा, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए कि ऊपर से क्विंटन डिकॉक जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन रीजा हेंड्रिक्स पहला मैच था उनका, और रासी वेंडर डुजन, इनकी पार्टनरशिप ने वो मोमेंटम दिया। तो साउथ अफ्रीका जब मोमेंटम देगा, ऊपर वाले 3, नीचे वाले जो हैं वो किसी भी टीम को बहुत मारेंगे वो। ऑलराइट, आज क्विंटन डिकॉक जो विकेट कीपर है नहीं चले मोइन, इस पे हम बात करेंगे आपसे, लेकिन इस वक्फे के बाद देखते रहिए द पेविलियन। Welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंड द ARY's ऐप है। Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 out of India. मुंबई से खबर, साउथ अफ्रीका ने एक तारीखी शिकस्त दी है ODI क्रिकेट के अंदर इंग्लैंड को 229 रन से मैच हराया है। बेहतरीन बल्लेबाजी रही साउथ अफ्रीका की तरफ से। मैं अपने साथ इस वक्त पेविलियन में मौजूद हूँ विद शोएब मलिक, मिसबाह, मोइन खान एंड वसीम अकरम। ब्रेक पे जाने से पहले मोइन, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था कि आज क्विंटन डिकॉक जो कि साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर हैं, वो नहीं चले, जो अगर वो चल जाते तो ये टारगेट कहाँ होता फिर? आई थिंक देखिए मैक्सिमम इतना ही स्कोर होता जिस तरह फिनिश किया, बट इट वाज अ बैड लक। मैच की सेकंड बॉल पे वो आउट हो गए। प्रीवियसली 2 बड़ी सेंचुरीज की हुई हैं। एवरीबडी नोज कि जिस कैलिबर के वो प्लेयर हैं, हर तरफ शॉट्स खेलते हैं। आई थिंक ये होता है अक्सर नए बॉल से, कभी कभार आप आउट हो जाते हैं, सेट होते तो यकीनन अच्छी इनिंग खेल सकते थे। यहाँ पे टेक्निकली बहुत साउंड है, हर तरफ शॉट्स खेलते हैं, चाहे वर्टिकल स्क्वायरिश शॉट्स हो या सीधे हिट्स हो। आई थिंक एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन यहाँ जिस तरह टीम ने इनकी उसके बाद डिस्प्ले किया ऑफ शॉट्स, आई थिंक ये बड़ी टीमें जितनी भी होती हैं वो यकीनन जब कभी ऐसे क्राइसिस आते हैं तो नीचे वालों को एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, और वो शो की है आज। मैं समझता हूँ कि बड़ी टीमें पिछले मैच में जिस तरह नेदरलैंड्स के खिलाफ हारे थे, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया है इंग्लैंड ने। मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच के अंदर स्पेशली उनको पता था सेकंड बॉलिंग, अभी तक अगर प्रीवियसली देखा जाए मैचेस के अंदर,
तो साउथ अफ्रीका ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उनके स्पेशली फास्ट बॉलर अंडर लाइट्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। प्रीवियस ऑस्ट्रेलिया के मैच में देख लें, वहाँ भी विकेट चाहिए थी, विकेट डिलीवर करके दी उन्होंने। और आज भी इंपॉर्टेंट मैच था यहाँ पे, अगर जिस तरह की इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप थी, इतनी सॉलिड बैटिंग लाइनअप, और एक ही चांस था साउथ अफ्रीका के पास कि विकटें गिरानी, और इनिशियली उन्होंने विकटें गिराई। आई थिंक इट वाज अ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एज टीम, मैं कहूँगा। जिस तरह फिनिशिंग भी किया, आखिरी 10 ओवर का डिस्प्ले किया है, शॉट्स लाइक 14.3 के एवरेज से आखिरी 10 ओवर के लिए साउथ अफ्रीका। आई थिंक दैट इज द मेन डिफरेंस विच आई बिलीव इन दिस मैच। Shoaib, let me ask you this. Klaasen and Hansen 109.75 रन, एक ने 162.68 के स्ट्राइक रेट से स्कोर किया है, एक ने 178.57 के स्ट्राइक रेट से जो है वो स्कोर किया है. दिस इज देयर लोअर ऑर्डर. I mean, I'm a little curious to say this is the kind of numbers that we are looking at, and मैं बिल्कुल stat के हवाले से बात कर रहा हूँ. This looks very, very formidable. This looks nothing. Let's put it this way. I guess if we start praising these stats, तो वो बड़ा अजीब सा होना शुरू हो जाएगा. ये शॉट्स देख सकते हैं हम लोग क्लासन की, और क्लासन की एक चीज़ देखें आप कि ये पहले इनके 25 ODIs. He scored 625 runs at an average of 31.25, strike rate 94. Next 20 ODIs, 896 runs at an average of 56 and a strike rate of 135. ये ODI क्रिकेट की बात हो रही है. और इन्होंने इस साल में जो सेंचुरीज बनाई हैं, सेंचुरी इन साउथ अफ्रीकन लीग T20 की बात कर रहा हूँ, सेंचुरी इन एन IPL, सेंचुरी इन मेजर लीग इन USA, एंड नाउ अ सेंचुरी इन वर्ल्ड कप. सो वी ऑल कैन सी ही इज इन प्राइम फॉर्म. और ये जो जेंसन है वो तो ऐसे 6 मार रहे थे जैसे वो स्टिक से कराते हैं ना कि यार फुलर करना, मैंने प्रैक्टिस करनी है. 36 छिक्के भी मारे हैं लास्ट 20 ODI जी बिल्कुल. और देखें ये जब आपको ये बंदे रन्स बनाते नजर आएंगे जब ऊपर वाले 3 में से 2 रन्स बना के देंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सिर्फ इनके लिए नहीं है, ये साउथ अफ्रीकन मतलब रेस्ट ऑफ द टीम्स इन द वर्ल्ड कप ये उनके लिए भी है. सिर्फ ये है कि इनमें इनके जो बैटर्स हैं मोस्टली फॉर्म में है, इन फॉर्म है जो एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द टीम्स. इसीलिए जिस दिन इनके पहले ऊपर में से 2 रन्स बनाएंगे 3 में से, ये बहुत लंबा टोटल लगाएंगे. हाँ, कोई भी टीम हो इनके अगेंस्ट, मेक श्योर इफ यू विनिंग द टॉस, बैटिंग फर्स्ट. मेक श्योर यू डू दैट एज अ टीम. I'm still baffled to I don't understand why England would win the toss and put them into bat, Misbah. Apparently he admitted in a press after in his post-match interview. ये जो आप post-match बात interview. करते हैं ना वसीम भाई के स्टैट्स, कई दफ़ा आपको जो है ना स्टैट्स ही सारा कुछ नहीं होते. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टैट्स के बाद आप खुद ग्राउंड रियलिटी देखें कि इस टाइम जो एक वीक टीम थी रिलेटिवली, उसने भी पहले खेल के साउथ अफ्रीका को चेज़ नहीं करने दिया. और अंडर प्रेशर वो साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप नहीं थी जो वो पहले खेलते हुए. तो हम उस दिन वे फॉरवर्ड में जब आपने पूछा कि साउथ अफ्रीका के लिए वे फॉरवर्ड क्या है, तो हमने यही बात की कि ओवर थिंक नहीं करना, गो विद योर स्ट्रेंथ, विन द टॉस, पावे बाद एड्डा पानी क्यों नहीं है, बैट फर्स्ट, सिंपली. Another question to you guys, all three of you, the panel. ये कुछ कहना है आपने? जी, एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर बोलूँगा. ठीक है, टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग दी इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को, लेकिन उससे पहले इनको ये सोचना चाहिए था कि ठीक है हमारे पास बहुत लंबे बैटर्स हैं, लंबी बैटिंग लाइनअप है, बट इन फॉर्म नहीं है. तो हाँ, इन फॉर्म नहीं है. और दूसरा, आपकी बॉलिंग वैसे ही हल्की है, क्योंकि आप इस तरह का मैच खेलते हैं, हमें मार लो हम आपको मार के पूरा कर लेंगे, नहीं. तो जिस एंगल से वो ये कहते थे हमें मारो और हम मार के पूरा कर लेंगे, वो तो इन फॉर्म में ही नहीं है. Credit to you, Shoaib, because right at the beginning, 4th October को जो हमने पहला शो किया था before the World Cup started, 4th October को, उस वक्त आपने उसी वक्त कह दिया था कि England has a space or a gap in their bowling, and that's their weaker part right now, and it's showing now. Not only the bowling, it's still their इन फॉर्म बैटिंग भी उनको नहीं पता कि कौन से 7 बैट्समैन हैं जो हमने खिलाने हैं. लिविंगस्टन आज ड्रॉप हो गए. पिछले मैच में 10 ओवर में 33 रन दिए थे, और आज मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत थी इस वेन्यू पे, 6 सिटिंग ग्राउंड है ना,
यहाँ पे उनकी बॉलिंग की भी ज़रूरत पड़ती। 4 फास्ट बॉलर खिलाए हैं, तेज़ बॉलर खिलाए हैं अगेंस्ट अ टीम जिनकी एवरेज सबसे ज़्यादा पेस की था कि ये जो लास्ट मिनट पे क्रूशल मैच में 3 चेंजेस जो की हैं, दैट शोज द प्रेशर। that shows you are the not clear. panic in the आपने कप्तानी की है, सबने किया है। जब आप इस किस्म की सिचुएशन में टीम होती है, क्लैरिटी जब नहीं होती तो आप कभी भी अपने गेम प्लान्स भी अंदर जाके आप कॉन्फिडेंट नहीं होते उसमें। तो दैट शोज़ कि आप जब अफगानिस्तान से हारे हैं, चेज़ नहीं हुआ, आपको पहले ही जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका शेक हो गया है, तो फिर इस किस्म के डिसीजंस आप करते हैं। दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है पैनिक बटन वाली। आप वो देख लें, जैसे हाँ साउथ अफ्रीका हारा है उनसे, नीदरलैंड से, इनको वहीं से देख लेना चाहिए था कि ये बैटिंग सेकंड करते हुए दे आर अंडर प्रेशर व्हेन दे हैव टू चेस। Exactly. चेस इज नॉट एवरीबॉडीज थिंग। एक मैं सवाल करना चाहता था वसीम आपसे। कल आपने हारिस रऊफ की जो फिगर्स थी, आपने कहा कि हारिस नीड्स टू गो बैक, ही इज बॉलिंग फास्ट, ही इज नॉट मूविंग द बॉल एट ऑल, एंड ही नीड्स टू गो बैक इनटू फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड प्ले द बिगर फॉर्मेट एंड develop himself as a seamer. But look at Mark Wood's figures today, 7 overs 76, and we can. So do we, I mean, how do you read this? Because do we send Mark Wood back to first class? आपने वो ट्वीट पढ़ी है जो मैंने भी पढ़ी। लेकिन साउथ अफ्रीका की एवरेज अगेंस्ट पेस फ्रॉम 2019 to 2023 where we are sitting, which year we are sitting, उनकी एवरेज सबसे ज्यादा है पेस के अगेंस्ट, 41 point something। तो मार्क वुड को जाने की जरूरत नहीं है फर्स्ट क्लास। Okay, well, in that case I have an observation. पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर है। बुरी खबर ये है कि हमने अभी साउथ अफ्रीका से मैच खेलना है। अच्छी खबर ये है कि हमने इंग्लैंड से भी मैच खेलना है, और अगर इंग्लैंड इसी फॉर्म में रही तो वी शुड बी इन गुड। वो चेसिस का रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं 2022 का, ये ओडीआईज है 2022 से, सिंस 2022। इसमें आप देख सकते हैं कि चेसिंग टीम्स winning percentages, India right on top, Pakistan at number 2, Bangladesh at number 3, New Zealand at number 4, Australia at 5, Sri Lanka at 6, South Africa at 7, Afghanistan at 8, England at 9, and Netherlands right at the bottom of that ऐसा भी स्टैट निकल सकता है कि जैसे इंडिया 27 मैचेस खेला है, पाकिस्तान 15 खेला है, बांग्लादेश 17, ये किस वेन्यू पे खेले हैं, किस टीम के अगेंस्ट खेले हैं, कौन सी ऑपोजिशन थी, कौन से प्लेयर्स खेले थे, निकल सकते हैं। मजहर अगर आप सुन रहे हैं तो ये स्टैट निकाल कर ये निकले तो फिर इस पे अच्छी बात हो सकती है, इसके ऊपर अच्छी बात हो सकती है, बिल्कुल चर्चा हो सकती है, बिल्कुल बहुत अच्छी मजे की हो सकती पता है। लगेगा कि कौन सी स्ट्रेंथ के साथ आपने इतनी विक्ट्रीज की हैं, तो आप बड़ी टीमों के खिलाफ किए हैं, छोटी टीमों के खिलाफ किए, बात ठीक है। मलिक की ये स्टैट सामने आएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा सबके लिए, इजी बात करना है चेसेस के ऊपर कि किस ने क्या चेस किया है। With that, we're going to take a break right here on the Pavilion, but when we come back, there's more on the other side. Don't go away, keep watching. Welcome back to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports and Sports in the Airways app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. News out of Mumbai, South Africa winning that one against England with a very big margin of 229 runs and marching on, looking very, very good. And with that, I now go to Wasim Akram. Wasim, what was lagging in English attack today? अगर हम क्या लेंस की बात करें, लाइन की बात करें, what was not right for them today? I mean, they probably have tried their best. They got an early breakthrough, but South Africans, I mean, England bowlers had no answer how to bowl at them. They just thrashed them. Okay, it was a very good pitch, but England came out to bat. It looked a totally different pitch, but 400 लगा हो तो फिर ऐसे बैटिंग होती है, और data failed this time because England ये जो आज टॉस जीत के उन्होंने पहले बॉलिंग की है वो ग्राउंड का डाटा देख के की है। करेक्ट। सो दैट्स व्हाई मिसबाह और हम सारे इस बात पे एडमेंट हैं कि डाटा जो है वो मैटर करता है, बट कई दफ़ा गट फीलिंग या आपका एक्सपीरियंस या पिच देख के अंदाजे से आपको हिसाब लगाना, सिर्फ डाटा पे नहीं जाना चाहिए आपको। बट कमिंग बैक टू देयर बॉलिंग, दे मेड 3 changes in a crucial game, a very important game, kind of do or die game, and everybody got hammered. Reece Topley got 3 wickets, but 88 in his 8.5 overs, almost 10 and over. Willie 9 over 61 average. Then Gus Atkinson, he bowled well. He's got 60 for 2. Mark Wood got hammered, 7 overs 76 for none. And then Adil Rashid got 2 for 61 in his 10. So yeah, they were all over the place. Only spinner, and I think Gus bowled okay. But जब 400 हो तो ये मतलब उन्होंने मारा कम और घसीटा ज़्यादा है।
एक चीज सच सेंटेंस ना, उन्होंने मारा कम घसीटा ज्यादा है, बिल्कुल देखिए, रगड़े लगे हैं आज बहुत। एक चीज़ एविडेंट है, अगर आप पूरे आपने भी देखा है, जो एक डिफरेंट बॉलर हमें नज़र आया वो बुमराह, कि वो अर्ली ऑन स्विंग कर रहे हैं, एरिया हिट कर रहे हैं, उसके बाद आके जो मिडिल में भी एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आप हिट, और कुछ ना कुछ आप बॉल अगर सीम हो रहा है, इवन कल के मैच में देखें ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने अच्छी जगह बॉल करके वही बॉलर बचे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं एक तो शॉर्ट बॉल को अच्छा यूज़ किया है, सरप्राइज बाउंस पेस वेरिएशन की है, जो एक ही पेस से बॉल कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा, अगर वो स्विंग या सीम नहीं हो रहा जैसे हारिस है, बहुत रन्स हो रहे हैं और बहुत अच्छा बल्ले पे बॉल आ रहा है यहाँ पे। तो गुड एरिया इज़ एन एग्जाम्पल कि जहां आप अच्छी बॉल करके थोड़ा बहुत गेंद को मूव कराने की जो ये कोशिश ग्राफिक दिखाते हैं टेलीविजन पे, आप जब ये वर्ल्ड कप में वो जो आपको लेंथ दिखाते हैं पिच मैप पे कि यहाँ पे इतनी, सो मोस्टली जो हमने देखा अभी तक जो वर्ल्ड कप में मैचेस आए हैं कि 6 to 8 मीटर जो बताते हैं गुड लेंथ से थोड़ा पीछे वो लेंथ मगर विकेटों में, और वहाँ से जैसे मिसबा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वेरिएशन वहाँ से करनी, लेंथ वो होनी चाहिए आपकी। अगर थोड़ा आगे जाएंगे तो सीधी खाएंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे तो बिकॉज विकेट्स आर काइंड ऑफ मोस्ट विकेट्स आर काइंड ऑफ ट्रू एंड बैटिंग पैराडाइज। और एक सरप्राइजिंग चीज़ है कि पेस वाले बॉलर को इवन वहाँ से भी हिट लग रही है। अगर अच्छा जिसका थोड़ा बहुत स्विंग या सीम हो रहा है वो बच रहा है, लेकिन पेस वाला बॉलर वहाँ से भी लग रही है। ये देखें ये मार्क वुड की जरा ये पिच मैप है मार्क वुड का, आज बड़े महंगे रहे आज, लॉट ऑफ शॉर्ट डिलीवरीज देयर। Yeah, 45% halfway and then of course 37 length जो मैं 6 और 8 मीटर की बात करता हूँ, और yeah he was kind of like I said all over the shop, his stride, the lengths weren't consistent, obviously he with his pace sometime on a batting deck आप चाहते हो कि आपको बैट्समैन चाहता है कि बॉलर मुझे शॉट करे, ताकि एक और चीज़ भी है वसीम भाई, ब्लू एरिया देखें जहाँ पे ये शॉर्ट बॉलिंग की है उन्होंने, ये इसलिए यहाँ पे पिच हुए हैं ये वाले बॉल्स क्योंकि वो वाइड ऑफ द क्रीज जाते हैं, इसलिए वाइड ऑफ द क्रीज कंट्रोल करना बॉलर को कि मैं अगर बाउंसर कर रहा हूँ तो वो फेस पे जाना चाहिए, वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप 6 to 8 मीटर पे भी बॉल करना शुरू कर रहे हैं वाइड ऑफ द क्रीज, वो भी थोड़ा सा टफ हो जाता है कि आप उसको स्टंप्स में फिनिश कर सकें। अगर थोड़ा सा ये स्टंप्स के साथ से करेंगे क्लोज टू द स्टंप्स तो ये काफी हैंडी हो सकते हैं। एक्सप्लेन यस प्लीज। एंड ऑफ माय करियर, एंड तो नहीं, बट व्हेन आई वाज 31 32 एंड आई वाज स्लाइटली स्टार्टेड गोइंग वाइडर, कोशिश मैं कर रहा था क्लोज टू द स्टंप बॉल करूं, भाग के आता था, पूरा कोन भी लगाया होता था प्लास्टिक का, बट पाँव वो बाहर ही गिरता था। बड़ी कोशिश की मैंने, बिकॉज माई माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया हुआ था कि मैंने पाँव ने मेरे लैंड यहीं होना, पास आके जब मैं डिलीवर करने लगता था तो अगला पाँव बाहर चला जाता था। मैंने कोई आई थिंक महीना 2 महीने काम किया इस पर, मैं कोई ½ an inch क्लोजर आया हूँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी बॉलर टू कम क्लोज। वाइड जा सकते हो आप, बट क्लोज आने में एक तो ये डर होता है कि आप आगे डेंजर एरिया में ना आ जाओ, बिकॉज डिपेंड करता है ना आपकी वो जंप कैसी है, उसके बाद का स्टेप जो आपकी है वो कितना लंबा है। अगर वो ज़्यादा लंबा है तो आप फिर वो डेंजर जोन में आ जाओगे, डेंजर जोन में आओगे अंपायर मना करेगा कि थोड़े बाहर हो, एंड देन यू विल बी ऑल ओवर द शॉप एज अ बॉलर। सो किसी भी यंग बॉलर ने कोशिश करनी है अर्ली ऑन इन हिज करियर, ट्राई कोशिश करो कि क्लोज टू द स्टम्प्स करो, वाइड ईजी है, सीखो क्लोज टू द स्टम्प एंड इवेंचुअली यू कैन वेरी, आप क्रीज यूज कर सकते हो, वाइड से भी कर सकते हो। That's an amazing tip. बॉल जब Thank you for that. रिवर्स स्विंग हो रहा हो या ना हो रहा हो, उन दोनों सूरतों में बताएं। जब यॉर्कर्स भी देखा है बोर्ड ने, कहीं यॉर्कर्स मोस्टली बिल्कुल यॉर्कर्स जो होते हैं वो हमें रिवर्स स्विंग जो हल्का सा भी एक हिंट मिल जाता है कि भाई ये बॉल शाइन अंदर है तो इसने अंदर ही आना है, तो फिर आपका पूरा जोर लगता है। जब पूरा जोर लगता है जहाँ आपकी नज़र होती है फोकस के मैंने ये करना, वो डिलीवरी होती है। जब बॉल स्विंग नहीं हो रहा था आपका माइंड सेट भी होता है कि मैं बाहर से अंदर लाऊंगा, वो अंदर आता नहीं, राइट, वो सीधा रह जाता है। 6 to 8 मीटर की आप बात कर रहे थे वसीम भाई, जैसे हारिस रऊफ की बात हुई या मार्क वुड की बात हुई, ये दोनों देखें तो इनका अगर आप कंपैरिजन करें साउथ अफ्रीकन बॉलर से, तो साउथ अफ्रीकन बॉलर जो हैं
लंबे हैं, उनकी हाइट है, तो अगर वो 6 to 8 मीटर पे कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ से हेल्प मिल रही है। कोई बैटर उनके अगेंस्ट अभी तक उस तरह नहीं खेल पाया। तो ये भी ज़रूरी है कि अगर 6 to 8 मीटर, अगर आप थोड़े से रिलेटिवली छोटे हैं हाइट में, तो वो 6 to 8 मीटर को थोड़ा सा और पीछे लेके आ सकते हैं। ये इंग्लिश सीमर्स का कलेक्टिव ग्राफिक है, पिच मैप है, ये आपकी स्क्रीन पे लेकर आ रहे हैं हम। लुक एट दिस इज हाउ दे हैव बोल्ड टुडे, a lot of short stuff there. वो 6 to 8, 7 to 9 meters हो गया randoms, but yeah 6 to 8 to 7 to 9. नहीं, but वो जो ग्रीन जोन है ना आगे जहाँ ब्लू डॉट्स पड़े हुए हैं सारे, that's where you are saying that they should be aiming at. That's the level. सबसे कम यहाँ पे यॉर्कर देखें, एक या दो यॉर्कर नजर आ रही हैं जो यॉर्कर भी नजर नहीं आ रहा। अगर हम साउथ अफ्रीका का देख सकते हैं, साउथ अफ्रीका का है हमारे पास कोई ऐसे ग्राफिक्स हैं? अभी देखते हैं अगर हमारे पास आता है। मीनवाइल लेट मी फील्ड प्लेसमेंट भी आज कुछ ठीक नहीं लगी थी। मेरा ख्याल है कि जिस तरह की हिटिंग हो रही थी, दो मिड ऑन मिड ऑफ बाउंड्री के बाहर भी लेनी चाहिए। You mean stands पे? स्टैंड्स पे भी दो खड़े करने फील्डरों की तो जरूरत ही नहीं पड़ी आज, फील्डर्स वर जस्ट स्पेक्टेटर्स बेसिकली। मिसबा यानसन की बात करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग भी की उन्होंने आज, एंड ऑफ कोर्स दैट इनिंग्स दैट वी सॉ। Does a batsman who bowls left-handed, does he have some extra advantage biomechanically for hitting bigger shots? वसीम भाई शायद इस पे बता सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वसीम भाई भी लेफ्टी बॉलर थे, लेफ्ट बैट भी तो बैटिंग लेफ्ट करते थे ना। एक चीज़ ये है कि आपकी कौन सी आर्म मतलब आपकी स्ट्रॉन्ग होती है नॉर्मली इफ़ यू आर बॉलिंग विद द लेफ्ट। ये गाइड करता है, ये गाइड करता है। जब मैंने कई दफ़ा अंदर लाना था तो मैं कोशिश करता था कि मैं इसको पीछे लेके जाऊं जी। जब मैं इसको पीछे लेके जाता था, इसका मतलब है कि मेरे ये पिवट होगा। Right. जब ये पिवट होगा तो उससे शोल्डर लगेगा, शोल्डर के साथ रिस्ट लगेगी। ये शोल्डर और रिस्ट का लगना बड़ा जरूरी है, खाली रिस्ट से काम नहीं यही होता। लेफ्ट हैंड आपका बॉटम हैंड बनता था बैटिंग करते बैटिंग में। हाँ, मैं बॉटम हैंड प्लेयर था, इसलिए जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो ये है कि जो जॉनसन है वो लेफ्टी बॉलर है, बैटिंग राइटी करता है, तो उसके दोनों आर्म्स स्ट्रांग होंगे। मैं यही बात कर रहा था उसके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मैं अगर राइट हैंडर हूँ, मैं अपनी बात करूं तो मेरी लेफ्ट लेग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है राइट लेग से। तो आप खब्बे टांग से बॉल करते थे? क्योंकि मैं बैटिंग में मेरा जो नॉर्मली आप लंच करते हैं ना, नॉर्मली इस पे आपके ज़्यादा वेट पड़ता है, ये नेचुरल है। हालांकि मैं ट्रेनिंग दोनों तरफ आप करते हैं, बट मैं अगर देखूं जब भी वेट उठा रहा हूँ, अगर लेग एक्सटेंशन कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये लेग मेरी स्ट्रॉन्ग है इस लेग से। इसी तरह मेरी ये वाली आर्म नॉर्मली, हालांकि मैं राइट हैंडर हूँ, लेकिन मेरी ये आर्म अगर मैं प्लैंक कर रहा हूँ तो ये आर्म मेरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? इसकी रेपिटेशन शायद ज़्यादा होती है। मैं जब बैट उठाता हूँ तो इस पे वेट ज़्यादा आता है और ज़्यादा ये यूज़ होता है। तो ये हो सकता है कि बॉलर की, क्योंकि दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उसकी बॉलिंग में फ्रंट लेग ये यूज़ हो रही है, बैटिंग में ये यूज़ हो रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एडवांटेज है। आपकी दोनों टांगें स्ट्रॉन्ग है और बेस भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके लीवर्स जो हैं। We have to go into a break, so I'm going to stop this conversation right here. We're going to take a break, but when we come back, we'll continue this conversation right here. Don't go away. Keep watching the Pavilion. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड दी एयरवाइज ऐप। Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 from India. दो मैचेस हुए आज। पहला मैच श्रीलंका ने जीता नीदरलैंड्स के खिलाफ, दूसरा मैच साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ। और इस वक्त हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि हैंसन की बात हो रही थी कि वो लेफ्ट बॉल करते हैं, राइट हैंड बैटिंग करते हैं। मैं मिसबा से जो पूछ रहा था कि बायोमैकेनिकली कोई एडवांटेज होता है, क्योंकि उनका जो बॉलिंग आर्म है वो उनका राइट हैंडेड बैटिंग करते वक्त वो उनका बॉटम हैंड बन जाता है। सो हाउ डज दैट वर्क? देखिए, अगर आप राइटी हैं तो रिलेटिवली आपका राइट आर्म स्ट्रांग होता है, अगर आप लेफ्टी हैं तो जो आपका लेफ्ट आर्म स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड से बॉल करते हैं, राइट हैंड से बैट करते हैं, जो जॉनसन करते हैं, तो उनके दोनों आर्म स्ट्रांग हैं। क्योंकि उसकी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, दे भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। माइकल क्लार्क फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बैट्स राइटी, बॉल लेफ्टी, और वो थ्रो भी लेफ्ट से करते थे। इसी तरह मोनरो फ्रॉम न्यूजीलैंड, बेन स्टोक्स फ्रॉम इंग्लैंड, इनको ये एडवांटेज होता है कि देखें जब ये रिवर्स शॉट मारते हैं तो इनके वो आर्म भी, दूसरा वाला भी स्ट्रांग होता है अगर लेफ्टी बॉलर हैं और राइटी खेलते हैं, तो ये एडवांटेज ज़रूर होता है इस चीज़ का। This is right left, the great one of the greatest of all time, Brian Charles Lara, right, is a left-hander, we all know, but he's a right-handed golfer. Oh, and okay, almost scratch handicap. That's wow, bizarre. That's and wonderful. Sir Garfield Sobers
was a scratch handicap as a lefty because he was lefty. With righty, he was a 2 handicapper. Ijaz Ahmed wasn't he right-handed batting and Yeah, throws he with the was left hand? also, yeah, उल्टे हाथ से बहुत Ijaz. throws करते थे फील्डिंग के हाँ, वक्त, बॉलिंग भी उल्टे हाथ से, हाँ उल्टे हाथ कैसे? से। लेफ्ट आर्म स्पिन दोबारा दिखाइएगा यार मोइन। नहीं उनके एक्शन ऐसे था, ये हाथ इनका यहाँ लग नहीं रहा नहीं मुझे बताइए मुझे इजाज भाई का। एक काची चाट क्यों बना देते ना नहीं वो एक्शन था ना, जब बंदा कंफर्टेबल फील करता है उसी Yeah, तरह उसने उसका मीडियम action पेस होता भी की इजाज ने, हमें मैच medium pace जिताया। बहुत जबरदस्त की हाँ, वो होबार्ट में अगेंस्ट उसको आई थिंक मार्क वॉक को कॉर्ड एंड पीछे से कराया, 10 ओवर किए वर्ल्ड उसने। कप 92 में भी की उसने बॉलिंग। Yeah, so he was a lefty थे, बॉलिंग भी लेफ्ट थी और थ्रो भी लेफ्ट। थ्रो भी लेफ्ट, बड़ी तेज थ्रो करते थे वो। मैं प्रॉपर लेफ्टी हूँ, Okay. बट आई राइट एंड ईट विद माय राइट हैंड, दैट्स बिजार। मैन आप हमारे साथ इस शो पे हैं, तो शायद वो लगा बात है, माँ ने भावे डंडे कराए हों कि सीधे हाथ नाल खाओ, सीधे हाथ नाल लिखो। आई सपोज दैट आई डोंट रिमेंबर। ये और समझ आ गई मैन भाई और समझाइए नहीं थोड़ी मेहरबानी, बड़ी आपने जबरदस्त किया जी। टाइम फॉर एक बाल है नाले 2 बाल हमेशा स्ट्रांग। तैयार बैठे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। मिसबा को खाना नहीं ना मिला, जब बगैर खाने के बैठ गए। खैर है मिसबा, थोड़ा सा हौसला कर ले। आवाज़ार भी हो गए हैं। यार थोड़ा और समझाओ, उन्हें समझ नहीं आए। चले एक दफा फिर जरा मैच समरी देख लेते हैं श्रीलंका और नेदरलैंड्स के मैच की, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, क्योंकि मिसबा का मूड जब बिल्कुल एन हमारी तबीयत के मुताबिक चल रहा है इस वक्त। ये मैच समरी एक दफा फिर आपकी ये रहा जनाब। पहला मैच था आज लखनऊ में एंड इट वाज नेदरलैंड्स वर्सेस श्रीलंका। 262 किया नेदरलैंड्स ने और 263 उसके जवाब में। इंटरेस्टिंग हेयर मोइन, नेदरलैंड्स का शुरू में एक तरीके का क्रैश हुआ है बैटिंग ऑर्डर, बट देन दे रियली रिकवर्ड वेल टू पुट अप दैट टोटल टुडे। जी, स्पेशली लास्ट में जो पार्टनरशिप हुई, इतनी बड़ी पार्टनरशिप हुई, आई थिंक जो पिछले मैच में जो कॉन्फिडेंस मिला था उनको अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, आई थिंक वो कहीं ना कहीं पे ऑफ तो करता है। तो ये जो पार्टनरशिप हुई थी 7th विकेट की 139 रन की, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसमें साइब्रेंट और एंगल ब्रेकटन वैन बीक ने जिस तरह बैटिंग की, आई थिंक एक पार्टनरशिप तो अच्छी थी। आई थिंक यहाँ पे श्रीलंका को भी यहाँ पे प्रेज करना पड़ेगा कि उन्होंने कहीं भी हिम्मत नहीं हारी, ऑल्दो कि एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप थी, कोशिश करते रहे। एक टाइम पे बिल्कुल बहुत सारी विकेट, यानी 6 विकेट गिर गई थी, उसके बाद ये पार्टनरशिप हुई थी और तमाम ग्राउंड में हर तरफ ही स्ट्रोक्स मारे। इसमें आप देखें, आई थिंक ये वो बीच का एक टाइम था जहाँ पे कुछ इनको अपने उस जोन में भी बॉल मिली जहाँ पे इजीली हिट करते थे। वंस यू गेट सेट तो आपको बॉल बहुत बड़ा नज़र आने लगता है, तो आप ऑलवेज अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हो वहाँ पे। आई थिंक ये पार्टनरशिप बिल्डअप की वजह ये थी कि यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आए कंप्लेसेंट हुए थे, क्योंकि जल्दी 6 आउट कर दिए थे श्रीलंकन बॉलर्स ने। तो अक्सर ऐसा होता है जब आप कंप्लेसेंट, आपकी सोच हो जाती है कि अब हम जल्दी आउट कर लेंगे, तो ऐसा ही होता है जब आपके काउंटर अटैक होता है, तो फिर आपको उस वक्त समझ नहीं आती कि अब करना क्या, अगला प्लान हमारा क्या है। तो यही वजह थी, ये पार्टनरशिप बिल्डअप ज़रूरी, बट एट दी एंड मैं समझता हूँ कि लास्ट 10 ओवर्स में सिर्फ 43 रन बने यहाँ पे। ज़्यादा रन बन जाते, लाइक 10-20 का भी फ़र्क पड़ता, तो देख लें कि एक ओवर पहले चेज हुआ ही है। मुझे थोड़ी सी वैसे एक स्ट्रेंज लगा कि डे मैच था, टॉस जीत के बैटिंग की है इन्होंने, अर्ली ऑन इनको थोड़ा सा मसला हुआ है, मुश्किल हुई है, बॉल हिल रहा था, स्विंग भी हुआ है, सीम भी हुआ बॉल श्रीलंकन बॉलर्स का। हालांकि रिलेटिवली अगर हम देखें, श्रीलंका की बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, राइट। तो मुझे लगता है कि अगर ये बॉलिंग करते तो ये उनको अंडर प्रेशर कर सकते थे उस टाइम पे। और फिर चेज़ में बाद में देखा कि थोड़ी पिच बेहतर खेली है और श्रीलंकन खेले भी अच्छा है, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग उनकी तरफ से। पर मुझे लगता है थोड़ा सा टॉस पे भी आई डोंट नो व्हाई दे डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट, शायद पिछले मैच की वजह से कॉन्फिडेंट थे, बट अर्ली ऑन इनको मुश्किल हुई है। मेरा ख्याल है ज़्यादा टीमों को काम ना अब टॉस पे करना चाहिए, बजाय अब जो थिंक टैंक है ना उनको सोचना चाहिए। दिलशान माधुशंके वसीम इज लुकिंग लाइक really a lot of potential in this young man, bowling really well। आज भी 4 विकेट उन्होंने हासिल की। 4 विकेटें उसने हासिल की, 4 विकेटें जीता ने हासिल की। और मिसबा बिल्कुल ठीक कह रहा है, शुरू में दोनों का ठीक ठाक हिल रहा था, उसका अंदर आ रहा था लेफ्ट हैंडर्स को, इसका बाहर निकल रहा था। आई मीन दे बोल्ड रियली वेल बोथ ऑफ देम, 4 विकेट्स अपार्ट। एंड आई थिंक वहाँ से जो उन्होंने डेंट डाला है इनकी बैटिंग में अर्ली ऑन, पार्टनरशिप से रिकवर तो कर लिया नीदरलैंड ने, बट आई थिंक इट वाजंट इनफ टोटल ऑन दैट particular pitch. It became better afterwards, batting second. And Sadira, again, one of my favorite players in Sri Lankan side. ज़रा थोड़ा शुरू में बहुत खुला खेलता है, I suppose
One-day cricket में आपको you have to build your innings. Yeah. Because it's a longer version of the game, as we all know. And he's a special talent. Sadira is only 29, 30, but this is kind of a peak of any batter's career. 28 till about 34, 35, and I think if he gets runs every game for Sri Lanka, they can be a dangerous side, but right now they're struggling. All right. And with that, we're going to take another break right here on the Pavilion. But when we come back, some more packages, and we're getting closer to your favorite segment, hashtag Ask the Pavilion. Don't go away. Keep watching Sports, 10 Sports, and the ARY Zap app. Welcome back to the Pavilion. You're watching Sports, 10 Sports, and the ARY Zap app. And Moin Khan and Shoaib Malik are trying to give a job to me. I'm fine. I don't need one. All right, the way forward. Moin, बहुत आप चहचहा रहे हैं. So, what the way forward for England? I think England का way forward. I think you should back your strength. अपनी strength पे मैच खेलें. जैसे मैंने कहा. स्ट्रेंथ पे तो वो खेले हैं उन्होंने. नहीं, स्ट्रेंथ में नहीं खेले. I think उनकी स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग है. उनको बैटिंग पे खेलना चाहिए. पहले प्रेफर करना चाहिए बैटिंग करें नेक्स्ट मैचेस में. टॉस जीत के बेशक जो भी डेटा कहता है उसके बाद जो 3 चेंजेस किए हैं वो करनी चाहिए. England chances are very slim to qualify. They have to win all the games. They have to win all the games. उनका run rate भी minus में आ गया है. They have to win by good margins, and then other teams has to lose and they have to qualify. And what they can do right now to focus on the remaining games and try to pick the best paying 11, not with tidbits जो भी होता है. Proper batters, proper bowlers खिलाएं. 1 से 2 all-rounder खिलाएं. Right, we're going to take a break, but when we come back, it's time for your favorite segment, hashtag Ask the Pavilion. ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है hashtag. अपने सवालात, अपने comments जो है हमारे साथ शेयर कीजिए, and we are going to be asking our experts here to answer your questions. Don't go away, keep watching Sports, 10 Sports, and the ARY Zap app. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports and Sports and the ARY Zap app and our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. We are in the Pavilion with 4 former Pakistani captains, outstanding cricket minds. I've got Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan, and Wasim Akram. And today at the ICC World Cup, we'd had 2 games. एक लखनऊ में जहां पर श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को हराया और दूसरा मुंबई में जहां पे साउथ अफ्रीका ने 229 रन के मार्जिन से इंग्लैंड को हराया. और इस वक्त हुआ है कि हम लोग बात करें आपके आस्क द पवेलियन के सवालात का, और ये सिलसिला शुरू करते हैं आज से पवेलियन का. पहला सवाल जो है हैशटैग आस्क द पवेलियन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है. आप ये सवालात भेज सकते हैं. दिस इज फ्रॉम शारिक अहमद. शारिक 456 आपका ट्विटर हैंडल है. आस्क द पवेलियन, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर वसीम अकरम. व्हेन ही वाज कैप्टन, आवर टीम वाज probably the most confident team in the history of Pakistan cricket. Even if we lost, how did he manage that? And what he would advise current team to increase their confidence? Wasim. Look, Sharik, it's a very complicated kind of question, but I suppose every captain have a different style. I've learned from one of the best ones in the business. First captain was the great Javed Miandad, and second long-term captain was the great my mentor Imran Khan. और उसके बाद मैं फिर कप्तान बना. तो उनसे जो मैंने सीखा था how to be a positive, especially when the chips are down. Because when you're doing well in life, you don't want clapping and friends around you. When you're not doing well, when you're struggling or down, then you need people around you, and then you need your teammates and everything. So I realized that early on, when things are not good, I'm going to lead. I'll be up there. I'll take the blame as a skipper. And when things are going well, just go have fun. अब कोई एक्सट्रीम नहीं किया कभी कि हार के लंबी मीटिंगें कर लो. मोइन भी बैठा साथ. एक्सट्रीम नहीं गए कभी कि हार गए हैं तो लंबी मीटिंगें कर लो, लंबे प्रैक्टिस कर लो. एक दफ़ा किया मैंने, बिकॉज तब मैं पहले कप्तान बना था शुरू में 93 में. आई थिंक हम साउथ अफ्रीका गए थे, यहाँ 43 पे ऑल आउट हो गए थे और लंच से पहले मैच ख़त्म हो गया था. तो वहाँ लंच करके फिर आई वाज अ किड, एंड नो सीनियर हेल्प मी देन. राइट. सो आई रियलाइज कि चलो जी इनको ट्रेनिंग कराओ. तो मैंने फिर सीधा वो केप टाउन में मैच था, लंच किया तो मैंने कहा जी हम वापस नहीं जा रहे, हम प्रैक्टिस करेंगे. तो वी प्रैक्टिस्ड इट, बट इट वाज़न्ट द राइट थिंग, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट डूइंग वेल, स्पेशली ऑन दैट पर्टिकुलर, उस दिन ना मीटिंग का फ़र्क पड़ता है लड़कों को, ना प्रैक्टिस का. ये जनरल लाइफ में भी ये प्रिंसिपल है. कोई गलती हो जाए या कुछ हो जाए, अगले दिन या 2 दिन बाद बात करो ठंडे दिमाग से.
ऑलराइट, फेयर इनफ। सुयाश झावर का सवाल है, हेलो फ्रॉम कोपेनहेगन। सुयाश झावर says hello from Copenhagen. Kudos to the team for such a lovely unbiased show. Bavuma was not in playing 11 today. Markram mentioned he was ill. Have you all faced a time when a player is not in good form and is dropped by giving a reason to cover up the story? No question on integrity of this decision by South Africa today, but I'm just curious. So this is a question आप सबके लिए कि कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग एज कैप्टन्स कोई एक लड़का जो है वो परफॉर्म नहीं अच्छा कर रहा? As a captain, it's easy to make a decision if a main guy, for instance, 99 टूर पे मैं और वकार एक पेस के थे और मैं कप्तान था. पहला टेस्ट वकार खेला, he bowled well actually, bowled his heart out, but second test in Calcutta, I had to play somebody who wasn't my pace. वो था उस वक्त पाकिस्तान का तेज तरीन, दुनिया को तो पता नहीं था, शोएब अख्तर. It was a very tough decision for me as a captain to take, but I took it for the betterment of the team. Eventually Wakar realized, but in the beginning obviously अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी upset होता, but शोएब को खिलाया, वो उसमें 8 आउट कर गया. मेरा ख्याल है वो सचिन और ड्राविड को जो दोस्त ने मजेदार स्टोरी है इस मैच की. प्लीज शेयर. तो आफरीदी और शोएब अख्तर साथ साथ बैठे, तो एक बच्चा आया. आफरीदी ऑलरेडी इतना फेम हो चुका था, स्टारडम था उसका, तो बच्चा आया. बच्चे ने आगे डायरेक्ट आफरीदी से साइन लिए, सिग्नेचर लिए, ऑटोग्राफ लिए. तो उसके बाद जैसे ही ख़त्म हुआ तो वो बच्चा जाने लगा, तो आफरीदी ने बोला कि बेटा इनके भी ऑटोग्राफ ले लो. तो बच्चे ने बोला ये कौन है? तो शेबी ने उसकी तरफ देखा, बेटा जान जाओगे. और वाकई उस मैच के बाद सारे जान गए थे. Well, that's the kind of confidence we need in today's players. As a captain ऐसे कभी नहीं हुआ कि मेरी आउट ऑफ फॉर्म हो और मैं अपने आप को ड्रॉप कर दूं. ये स्टेज नहीं आई. बट दिस एक्चुअली अब देखें कि साउथ अफ्रीकन टीम का मैंने शो के शुरू में भी एक्सप्लेन किया था कि अब कॉम्बिनेशन ठीक लगा. ऑल्दो द कैप्टन वाज अपेरेंटली वाज इन अ गुड निक बिफोर दिस वर्ल्ड कप, बट यहाँ पे वो पहले 1-2 मैचों में स्ट्रगल किया, फिर बीमार हो गया, और आज जो वो खेला है वो लड़का उनकी जगह. So I wanted to ask you, Wasim, do you think that now with this performance of Hendricks, would the captain say, you know what, I'm just going to sit out and wait? Because उधर न्यूजीलैंड के कप्तान भी नहीं खेल रहे, विलियमसन इज आउट, वो तो इंजर्ड है. श्रीलंका के भी कप्तान इंजर हो गए, वो हो गए. बांग्लादेश में शकीब भी इंजर हो गए. बट हियर बवूमा, मैंने कभी ऐसा पहले देखा नहीं जिंदगी में. क्रिकेटिंग वर्ल्ड की बात करूं अपने एक्सपीरियंस के साथ, एक कप्तान फिट है और वो कहे कि मैं नहीं खेल रहा, मैंने कभी तो देखा नहीं. आई डोंट नो, तो आप लोगों ने देखा हो या देखा हो. एक एग्जांपल हो सकती है अगर उनका फील करते हैं बाकी टीम के लिए कि मेरी फॉर्म अच्छी नहीं है, जिस तरह हेंड्रिक्स खेले, तो जैसे हर प्लेयर का गोल होना चाहिए टीम का गोल, तो कैप्टन का भी यही गोल होना चाहिए कि हम किस तरह ये ट्रॉफी जीत सकते हैं. That's the approach to it. Yes. साद पाशा का सवाल आया है. साद पाशा आपका एक्स हैंडल है और आप कह रहे हैं, हेलो पैनल, व्हाट इम्पैक्ट ऑन द टीम परफॉर्मेंस डू फ्रीक्वेंट चेंजेस टू पीसीबी लीडरशिप हैव? Coaches have changed, but the nucleus of the team has remained the same over the last 3 years. So, Saad Pasha, let me take this to you, Misbah. मेरे ख्याल में अगर तो आपकी टीम में चेंजेस होती हैं तो फिर आपको मुश्किल होती है. कोचिंग स्टाफ भी चेंज होता है तो उससे भी फ़र्क पड़ता है. टॉप में अगर चेंजेस होती हैं तो मेरा नहीं ख्याल, अगर कप्तान वही है आपका न्यूक्लियस वही है टीम का, तो उस पर फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए. पड़ता है मिसबा. मैं जब कप्तान था, चेयरमैन बदलता था, तो एज अ कैप्टन मुझे ये नहीं था पता होता कि चेयरमैन ने मुझे पसंद करना है नहीं करना. परफॉर्मेंस डजंट मैटर, कप्तान बनाएगा नहीं बनाएगा. सो दैट इज़ एन काइंड ऑफ एन एडेड प्रेशर, और उससे टीम में एक क्या उसे कहते हैं, थोड़ी अनसर्टेनिटी आ जाती है. फिर पूरी कोचिंग स्टाफ चेंज हो जाता है, फिर पीसीबी में 70 नए बंदे आ जाते हैं एकदम से नौकरी में. होती है वसीम भाई, जो आपके साइड के लोग होते हैं, जो एडवाइजर हैं, सबके साथ होते हैं, वो भी आपके कानों में डालते हैं बात. बट शेबी, there's a saying, very important saying, you judge a person by his advisors. Right. This is as simple. अगर उसके एडवाइजर्स ही आप देख लें कि भाई आते काम भी ठीक नहीं गा, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ एडवाइजर, क्योंकि फ़र्क ज़रूर पड़ता है. फ़र्क पड़ता है क्योंकि आपके कानों में आती हैं बातें कि यार अब नए चेयरमैन आ गए हैं जो खेल भी रहे हैं, या जो कैप्टन है जी
फर्क जरूर पड़ता है उस चीज से परफॉर्मेंस में। Fair enough. अतुल सोनी 1402 आपका एक्स हैंडल है। अतुल सोनी कहते हैं, क्वेश्चन टू ऑल, डिस्पाइट हैविंग 2 W's, इमरान, आसिफ, अख्तर एक्सेट्रा इन द पास्ट, व्हाई पाकिस्तान नेवर वन अ टेस्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया? We even saw Australia belted Pakistani bowling in the past. Do you guys think that the current Pakistan team can win a test series against Australia in the next 20 years? Look, Australia is the toughest country to tour. Different pitches altogether than England or New Zealand. New Zealand में बॉल हिलता है, England में भी हिलता है, but Australia में जो bounce है, for especially in Western Australia, in Perth and in Brisbane. बाकी Adelaide and Melbourne are drop-in pitches, so वो थोड़ा घास से शुरू होता है और फिर slow थोड़ी होती हैं, so bounce वहाँ काबू नहीं आता। और जो वहाँ की sand है, जो वहाँ की grounds हैं, उनमें sand content थोड़ा ज़्यादा है, तो फास्ट बॉलर्स के स्ट्रेट अवे आपके हैमस्ट्रिंग, ग्रॉइन और लोअर बैक पे प्रेशर पड़ता है। और कोकोबोरा बॉल 20 ओवर बाद स्विंग भी नहीं होता, 20-25 ओवर तक होगा हल्का फुल्का, उसके बाद सीधा सिर्फ आप रिवर्स का वेट तो करो। और उस सेकंड क्वेश्चन माय ओपिनियन सबका लेना चाहिए। अभी इसके बाद मिसबा से भी पूछते हैं, ये टेस्ट सीरीज जो आ रही है, मुझे आप बॉलर बता दें कौन से लेके जाएंगे टू स्टार्ट ऑफ विद। डू वी नो व्हाट बॉलर्स वी आर टेकिंग? बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं। सबसे मुश्किल जगह है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, बाकी आप हर जगह पे जाके हमारी बॉलिंग बेहतर कर लेती है। अब हम बेसिकली बात करते हैं जब भी ऑस्ट्रेलिया के, हम समझते हैं कि शायद हमारी बैटिंग है, बट मैं समझता हूँ, मैंने जितने भी टूर किए हैं, हमेशा हम 10 विकेटें नहीं ले पाते, किसी एक इनिंग में भी पूरे आउट नहीं होते वहाँ पे। Right. सबसे जो बड़ी चीज़ है कि हमारी बॉलिंग वहाँ पे जाके बहुत स्ट्रगल करती है और मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है वहाँ पे बॉलर्स के लिए। मैंने इतने टूर किए हैं, द क्लोजेस्ट मोइन वी केम was 99 2000 टूर, जहाँ वो उन्होंने 370 आउट करने थे होबार्ट में, they were 125 for 5, and then Gilchrist and Langer उन्होंने अगेन मारा कम और घसीटा ज़्यादा, और उसमें जो कॉट बिहाइंड था लैंगर का, बाद में ही एडमिटेड इट, ही वाज अ मैसिव निक, बट अगेन उसके बाद फिर पर्थ तक पहुंचे थर्ड टेस्ट मैच में, बाय द टाइम तब तक 2.5 दिन इस मैच ही मुक गया था, हिम्मत रह चुकी हुई थी। Alright, I hope you got your answer to that. We have more questions coming on #AskThePavilion. आप भी अपने सवालात भेज सकते हैं, but we're going to take a break right now. When we come back, there are more answers for your questions. Welcome back to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports and Sports AI's app and our continued coverage of the ICC Men's World Cup. With me in the Pavilion, I've got 4 outstanding cricketing minds. I've got Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan and Wasim Akram. और #AskThePavilion का सिलसिला अभी भी जारी है, आप लोगों के सवालात और उनके जवाबात। एक सेकंड, 2 सादे नान मंगा लो। क्यों? एक दे दो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। क्यों? एक ब्रेक हो रहे ना, दे देना एक। ਉਹ बेचारा मजलूम ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ है, नहीं बाकी भूख लगी हुई है लग रहा है यार, एक्सक्यूज अस, वी आर वेरी नॉटी। वजह बताएं ना क्यों है ऐसे? क्योंकि खाना जो था वो आया हुआ था, हम लोग सारे भागे हैं, वो इंग्लैंड के जल्दी आउट हो गए हैं, तो खाना जो है ना वहीं पड़ा रह गया। कसूर इंग्लिश बैटिंग का है, हमारा नहीं है मिसबा, कसूर इंग्लिश बैटिंग का है। साजिश हो गई मिसबा के खाने के खिलाफ साजिश हो गई है। डॉक्टर उमैर आपका ट्विटर हैंडल है, उमैर आपका नाम है, डॉक्टर उमैर आस्क द पवेलियन, वसीम अकरम in his days was a fielder at par with the best, the most intelligent bowler in different conditions and against various oppositions, and finished some of the most important batting innings for Pakistan. Why can't the current Pak cricketers do that, Wasim? Look, I can tell you about myself. I can't tell you about the current people, जो player हैं हमारे, उनका mindset क्या है. I wanted to be the best of the best, and I wanted to get involved, not just as a bowler, as a fielder, as a batter whenever I could. ठीक है, मैं इतना consistent नहीं था, मगर कई दफ़ा मौके पे आके छोटी मोटी इनिंग खेल लेते थे, because मैं अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं था होता. मैं कहता यार अगर मैं आज मैन ऑफ द मैच हूँ तो मैं कल जाके फिर मैंने मैन ऑफ द मैच होना है. वो कल वाला जो है वो गुजर गया है, अब मैंने कल सोचना है मैंने कल क्या करना है. वेरी सिंपल, आई वांटेड टू बी इन्वॉल्व्ड इन एवरी एस्पेक्ट. और मैं बार बार कहता हूँ यंग जनरेशन को कि फील्ड क्रिकेट में 3 चीज़ें हैं, डिपार्टमेंट्स कह लो क्या कह लो, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग. बैटिंग में टैलेंट चाहिए, बॉलिंग में टैलेंट चाहिए, फील्डिंग में टैलेंट के अलावा आपको सिर्फ मेहनत चाहिए. जितनी करेंगे उतनी इम्प्रूव होगी. ये बेस्ट फील्डर दुनिया का मेरे सामने बैठा है, ये बता देगा कि उसकी रीज़न क्या है.
10 तू 10 How to be a good fielder? It's not that difficult. देखें, जब आप इट्स अ टीम गेम, जब आप टीम गेम खेलते हैं तो एक टीम ड्रिल होती है साथ में, वो आप करते हैं। लेकिन 11 या 15 या जितना भी स्क्वाड होता है वो सारे अच्छे फील्डर्स नहीं होते, उनमें कुछ लोग अच्छे होते हैं। वो अच्छे कैसे बनते हैं कि जब वो टीम ड्रिल हो जाती है उसके बावजूद वो अपने आप को 15-20 मिनट देते हैं। और कोई दुनिया का कोच या कोई इंसान आपको ये नहीं बता सकता कि आप किस चीज़ में वीक हैं, वो आपको अंदर वाला इंसान आपका बताता है। आप जाके एक्स्ट्रा टाइम उस पर लगाएं, यही एक चीज़ है। विदाउट पुटिंग द हार्ड वर्क यू वोंट बी एबल टू अचीव जो भी आप अपने सेट करें अपने गोल्स लाइफ में। सो हार्ड वर्क इज़ द की। मालिक, मैच के दौरान मेरे ख्याल में डिफरेंट जो करते हैं, जो अच्छे फील्डर हैं वो पूरा मैच डालते हैं बैट्समैन के साथ, अपोजिशन के साथ। वो जो एटीट्यूड होता है ना आपका कि 300 बॉल होने ही होने हैं, मैं अंदर हूँ। बैटिंग में मुझे नहीं पता, हो सकता है पहली बॉल में मैं आउट हो जाऊँ। बॉलिंग में आपके पास नंबर ऑफ ओवर्स लिमिटेड है, लेकिन फील्डिंग में आप जब अलर्ट होते हैं कि हर बॉल में मैंने कुछ ना कुछ करना है, तभी आप कुछ कर सकते हैं, एंजॉय करते हैं उसको। जब ये लगेगा यार बोझ है, मेरी तरफ बॉल ना आ जाए, तो देन इट्स वेरी उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है सेम स्पिरिट होती है। अगर 11 में ये सेम स्पिरिट हो तो ऑटोमेटिकली 3 से 4 डिलीवर करते हैं और वो टीम जीत जाती है। Absolutely. ये अप्रोच जो वसीम भाई ने बताया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah, आप अपने आप से कभी आपको सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। सही है। दाइन इसकी मैं आपको थोड़ा सा वो भी, वसीम भाई के पास, वसीम भाई ने पहले बताया कि वसीम भाई के पास अगर इजी बॉल भी आया है और बैट्समैन आराम से वॉक करके भी सिंगल ले रहे हैं या मज़े से वो पहुंच गए, तो हमेशा यही देखा है टीम में आके इनको देखे बॉल पिक किया और शपाके की थ्रो गई है, गोली की तरफ थ्रो कीपर के हाथ में। ये देख लेना, ये शपाके लेकिन सबसे important चीज़ क्या थी? शपाके की थ्रोज का नतीजा मोइन पे क्या हुआ है? देखिए मोइन भाई, ये देखिए शपाके इन्हीं लोगों ने ये किया जी, ये देखें। मोइन भाई, आप तो सीधा रास्ता भी नहीं बता सकते, बस ने इधर भेज देना साइड से। सीधा जाए, इधर जाओ, सीधा जाए। लेकिन प्रेसिडेंट इस बोर्ड ने की हो रही है ब्रेक नहीं है बिकॉज़ अभी तो तीनों डिपार्टमेंट्स में आप ऐसे थे। तो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट वजह थी कि आप फिजिकली बहुत फिट थे। फिर ही आप वहाँ पे हाजिर है ना तीनों डिपार्टमेंट्स में। फिजिकल फिटनेस इज द की। इट्स द की। सैयद दानियाल हैदर जाफरी, आपने सवाल पूछा है। सैयद दानियाल हैदर जाफरी, माय क्वेश्चन इज फॉर मिसबा भाई। Why Pakistan cricket team doesn't focus properly on power hitting training sessions? Mostly teams perform this session with open nets. Please. They do. अगर आप समझते हैं कि नहीं करते, ये तो हर प्रैक्टिस का मामूल है। सेंटर में जाते हैं, हिट्स भी करते हैं, सारा कुछ। बट जो मलिक ने भी बार बार बात की है कि वो आपने इनिशिएटिव लेना है ड्यूरिंग द गेम। ड्यूरिंग द गेम जैसे आपने देखा कि पिछले कितने हम बात करें 1000 बॉल्स हो गए, हमने पावर प्ले में कोई बड़ी हिट नहीं मारी, छक्का नहीं मारा हमने। तो इनिशिएटिव लेने की बात है, हम ट्राई करेंगे तो लगेंगी। मेरे ख्याल में जब भी हमने देखा है पाकिस्तान टीम बिल्कुल पावर हिटिंग करती है, बट वो जो एक वे ऑफ प्लेइंग है ना, उसको पहले आपने एक्सेप्ट करना है कि हमने उसको चेंज करना है। उसके ऊपर जी वसीम, अब क्वेश्चन तो नहीं, उन्होंने एक एडवाइस भेजी है जो कि हमारे मुल्क में हर एक के पास है। फैज मुगल साहब ने, उन्होंने कहा टीम ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਾयਦ परफॉर्म कर जाए। साड़ी तो कढ़ाई ਨੂੰ दम लग गया ना। ओए मिसबा की मुस्कुराहट देखें, कढ़ाई कर रहा है। इट्स नॉट अ बैड आइडिया। या नॉट अ बैड आइडिया। हमारी बात एंड में दम दरूद पे ही आती है। दम दरूद पे बिल्कुल ऐसे ही। आदित्य शुक्ला का सवाल है। आदित्य शुक्ला पूछ रहे हैं कि हु शुड प्ले इन इंडियन स्क्वाड गिवन BCCI report that Hardik Pandya is ruled out of New Zealand match and Dhani can't play for India. So, is it Surya Kumar? But that's good. That's a great sense of humor, Aditya Shukla, because ये मजाक आपका सवाल आपसे शोएब मलिक कि so who can play for India? सूर्या कुमार यादव and शामी, इनमें से कौन आपको लगता है कि सूर्या कुमार यादव वो इसलिए क्योंकि जो छठा और पांचवा बॉलर है वो शरदुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या थे, जो कि अवेलेबल नहीं है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। लेकिन दो चेंजेस जो है करनी चाहिए। अगर सूर्या कुमार यादव आते हैं तो फिर शरदुल ठाकुर की जगह जो है वो शमी को खेलना चाहिए, ताकि प्रॉपर 5 बॉलर्स पूरे हो सकें और बैटिंग वाला एलिमेंट भी आ सके। सुहेब बशारत पूछते हैं कि शुड बी गो विद शादाब एंड उसामा बोथ विद नवाज एज द 12th मैन? मिसबा
नमाज फिर भी 5 ओवर करा लेगा, उन्होंने 12th में किया था। दम पे आ गए हैं Come on guys, I mean, you know, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मुझे ये बताएं नमाज को 12th मैन क्यों? क्योंकि 12th मैन भी 4-5 ओवर करा लेगा। मतलब उसका 13 मैन 14 हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोनों विकेट टेकिंग ऑप्शन है। लेकिन ये है कि आपको दोनों लेग स्पिनर हो जाएंगे। अगर एक को अच्छा खेलना शुरू कर दिया ऑपोजिशन ने, तो दूसरा भी फिर आपके पास डिफरेंट वैरायटी नहीं रहेगी आपके अटैक में। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो है, और फिंगर स्पिनर जो है वो अच्छा कर रहा है इंडियन कंडीशंस में, स्पेशली चेन्नई में मैच है पाकिस्तान का अगला। ओके, आबिद मिनहाज का सवाल है वसीम अकरम आपसे, उन्होंने किया है सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल वसीम अकरम से है कि जब आपकी कप्तानी में इस तरह का वक्त आता था जैसा अब पाकिस्तान टीम पे है, तब आपकी हिकमत अमली क्या होती थी लड़कों के साथ? आप किस तरह क्या रवैया रखते थे? आपसे सवाल किया है आबिद मिनहाज ने। Normal. Nothing changes. It's the same team you've been playing with for a year or so. Same boys who have been winning for Pakistan, and there's nothing extra. कुछ नहीं कर सकते आपको. There is no point giving them extra unnecessary stress or pressure, especially now. Okay, they played 4, they lost 2, but if they win 1 or 2, maybe इनका winning streak एक momentum बन जाए. राइट, उससे But stay the same. There's no point changing anything. आखिरी सवाल ले रहा हूं मैं, और वो है BDS डायरीज का। BDS डायरीज आपका ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है। BDS डायरीज, मेरा सवाल मिसबा भाई से है, क्या इब्रार को रिजर्व रखने का फैसला सही था, जबकि वो टेस्ट सीरीज में परफॉर्म करके आ रहा है? इब्रार ट्रम्प कार्ड हो सकता था। मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि आप उस मीटिंग में थे, तो आपने आई एम श्योर बोला होगा। देखिए, मैंने पहले भी ये क्लियरली मीडिया पे भी कहा है, यहाँ पे भी कहा है कि बिल्कुल हमारा व्यू पॉइंट था कि एक मेन स्पिनर होना चाहिए, मिस्ट्री स्पिनर। स्पेशली जब आप खेल रहे हैं डिफरेंट टीम्स के साथ, सीरीज़ नहीं है और एक टीम ने एक ही दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा खेलना है किसी भी टीम के साथ, एंड दे विल बी प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो अबरार को आपको स्क्वाड में रखना चाहिए था, कीपिंग इन व्यू कि आपकी स्पिन बॉलिंग जो है वो अच्छी फॉर्म में नहीं है। एशिया कप में भी आपने देखा, बट इट्स माय ओपिनियन या इट्स हफीज़ बेसिकली उसकी ओपिनियन। असल तो मैटर करता है कि आपकी टीम मैनेजमेंट या आपका कप्तान वो क्या सोचते हैं। Right. They have the team what they wanted. All right, with that, we are going to take a break on us, the Pavilion session here in the Pavilion. When we come back, something else on the other side. Right, welcome back to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports and the ARY's app. Our continued coverage of the ICC World Cup. 2 big games today. लखनऊ में श्रीलंका ने नेदरलैंड्स को हराया, और मुंबई में साउथ अफ्रीका ने एक बड़े मार्जिन से इंग्लैंड को हराया। और आज द Pavilion का सिलसिला जारी है। मेरे साथ हमारे चारों मेहमान स्टूडियो में मौजूद, शोएब मलिक, मिसबाह मोइन खान, वसीम अकरम। आनंद कुशावा, आपका सवाल है। आनंद कुशावा मुझसे कह रहे हैं कि फखर भाई, व्हाई डोंट यू टेक एन iPad टू रीड ऑल क्वेश्चंस इन ट्विटर? इट विल बी इजियर फॉर यू टू रीड इन द स्टूडियो, इट विल सेव यू लॉट ऑफ टाइम। आनंद, लाख ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे बस ना पूछें आगे। What are you on about, man? अगर ए स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट ये सुन रहे हैं सवाल आनंद का, तो प्लीज जरा iPad का बंदोबस्त कर दें। मैं तेन 3 रुपए नहीं दे सकता। सदर ए स्पोर्ट्स के नाम पर वैसे भी आपने क्यों लेके देना है? आप तो वो हैं मोइन भाई, आवाज करना जरा। नागा। Oh boy. For Moin Khan, अरमागान खान एट खानम अगान आपका ट्विटर और एक्स हैंडल है। हाउ वुड यू रेट रिजवान्स परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड कप सो फार एज अ विकेट कीपर फ्रॉम अ विकेट कीपर्स पर्सपेक्टिव? दिस इज फ्रॉम अरमागान खान फॉर यू मोइन। बेहतरीन परफॉर्मेंस है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसे कोई उनके साथ एज सच इशू है टेक्निकली। मेरा ख्याल है बहुत अच्छी जहाँ पे ज़रूरत थी पाकिस्तान टीम को श्रीलंका के खिलाफ एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। Actually, you can't expect in every match, although he played one more inning, 50 रन उन्होंने किए थे, लेकिन हर दफ़ा बहुत मुश्किल होता है किसी भी प्लेयर को इतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, you know. But again, he's a wonderful cricketer, very sensible, very smart, टेक्निकली बड़ी चीज़ें हैं वो नज़र आता है, वो अप्लाई करवाते हैं,
टाइम टू टाइम मशवरे भी देते हैं, यू नो। आई थिंक ही इज़ अ कंप्लीट क्रिकेटर। मुझे नहीं लगता कि कोई फ्लॉ उनके अंदर ऐसा है कि हम उस पर बात कर सकें। जी शोएब, मेरा क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे सबसे कि जैसे हम लोगों ने आज देखा कि क्लासन स्कोर्ड 100, got tired, Right. and then they have another wicket keeper Yeah. who kept In the playing 11. yes, in the playing 11. Even Bangladesh have to. जी, उससे मुझे ये लगता है कि एडवांटेज हो सकता है क्योंकि आपके बैक टू बैक मैचेस भी आते जा रहे हैं। जैसे 50 ओवर इट्स नॉट इजी, आप 50 ओवर विकेट कीपिंग करके हैं, फिर आप 100 बनाए या आपने पहले 100 बनाया, फिर आपको विकेट कीपिंग करनी है या आपने इनिंग्स अच्छी खेल ली है, तो हमारे पास भी 2 होने चाहिए थे 15 में। ये मेरा क्वेश्चन आस्क द पवेलियन। ये जवाब दे जी शोएब मलिक। जब हम 99 वर्ल्ड कप में थे, कीपर एक था हमारा, वो था मोइन। बट अगर फिट हो सकते हैं, जैसे इंग्लैंड टीम में है बेस्ट्रो, और वो प्लेइंग 11 में आते हैं, नॉट फॉर द सेक ऑफ बीइंग अ कीपर, एंड दे आर प्रॉपर बैटर्स हु कैन कीप एज वेल। एंड देन यू हैव श्रीलंका, they have 2 keepers as well. Even in England we have like हाँ, इंग्लैंड का तो मैं जिक्र कर चुका हूँ। Bairstow है, हाँ, बेस्ट एंड बटलर, वही बोला मैंने। हाँ, तो उस तो बाद फिर इंडिया, उनके स्क्वाड में भी 2 हैं। पाकिस्तान का जो पहला मैच एशिया कप से होता, उसमें ईशान किशन खेले थे और वो भी कीपर हैं। अगर प्लेइंग 11 में आ सकते हैं आइडियली तो येस वुड बी परफेक्ट, बट वैसे 15 में फिर आपके पास स्पिनर एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा बैटर की ऑप्शन कम हो जाती है। जैसे वो बहुत अच्छी फॉर्म में है रिजवान, तो आई एम श्योर यू गेट टायर्ड एट सर्टेन स्टेज ऑफ द गेम, तो वहाँ पे टू हैव अ सेकंड विकेट कीपर या कोई रेडी कर लेना चाहिए। रेडी कर लेना चाहिए इस वक्त। आई डोंट थिंक सो कि कोई इस वक्त रेडी है ऐसा कि एज अ बैट्समैन खेले या एज अ विकेट कीपर टीम में खेले। एब्सोल्युटली। आखिरी सवाल लूंगा मैं आज। ख्वाजा साहब का सवाल है, असद ख्वाजा आपका एक्स हैंडल है, और आपने कहा है कि क्वेश्चन फॉर मिसबा एंड शोएब, व्हाई इज वसीम जूनियर इन द स्क्वाड इवन आफ्टर हिज पुअर परफॉर्मेंस इन एशिया कप, एंड जमान खान जॉइंड टीम to play the final match and he performed well but still in the reserve? Both of you gentlemen. सारे सवाल वो हैं जो बेसिकली होने तो टीम मैनेजमेंट से चाहिए या सिलेक्शन कमेटी से। ओवरऑल ये सब के लिए कंसर्न है कि अनफॉर्चुनेटली ही इज़ अ गुड बॉलर, बट जब आपका एक चौथा बॉलर होता है टीम के साथ, तो जैसे वसीम भाई अक्सर कहते हैं, ही शुड बी अ कंप्लीट बॉलर। नए बॉल से भी बॉल करने हैं, बीच में भी डेथ में भी आके बॉलिंग करनी है, which unfortunately at the moment वसीम जो भी मैचेस खेला है is unable to do that. Right. मिडिल में भी आके उस तरीके से बॉलिंग नहीं, हाँ जब रिवर्स स्विंग होता है बैक एंड ऑफ द गेम वहाँ पे आके वो बॉल कर सकते हैं, जो कि अभी तक यहाँ पे वो सिनेरियो नहीं है, बहुत कम ऐसा देखने को मिला है। तो ये एक कंसर्न है और सबको नज़र आ रहा है। Yeah, that is there. All right, folks, ek dafa phir for all our viewers in the United Kingdom, you can watch us 10 p.m. On the ARY Digital UK beam. That's on Sky 758. Please join in. और जब आप ये देखें तो you can also send in your questions and your comments and hashtag Ask the Pavilion on X, on Facebook, on Instagram, and whatever platform that is out there. And also now let's talk about what we have in store for you tomorrow. कल एक बड़ा मुकाबला है, दोनों टेबल टॉपर्स आमने सामने हैं. It is India versus New Zealand at Dharamsala. This is going to be a great game of cricket because दोनों इंडिया न्यूजीलैंड बराबर के पॉइंट्स के साथ बिल्कुल टेबल टॉप पर हैं. जो हमारा पॉइंट्स टेबल है, न्यूजीलैंड का नेट रन रेट बेहतर है इंडिया से. So this should be a great game of cricket, Moin. 100% because बहुत 100% yes 100%. जिस तरह इंडिया खेल रही है नेचुरली नज़र आ रहा है कि अनबीटेबल एक तो टीम है वो, और हर प्लेयर फॉर्म में, हर प्लेयर ने परफॉर्मेंस की. एक सेटबैक ज़रूर होगा कि यहाँ पे ऑलराउंडर उनके मौजूद नहीं होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया अगेन कैपेबल है इन कंडीशंस के अंदर. अपने तमाम ग्राउंड में उन्होंने प्रूव किया, ये एक एक प्लेयर ने प्रूव किया कि दे आर अ गुड साइड, दैट्स व्हाई दे आर ऑन टॉप. तो यहाँ पे मुश्किल होगा न्यूजीलैंड, ऑल्दो दे आर परफॉर्मिंग वेल, बट मैं समझता हूँ इंडिया कल मैच ले जाएगा. राइट, सॉरी, आपको जास्त है सर, जास्त है तो एक दफ़ा ज़रा ये मोइन से करवा देना, चिट्टा टट्टू कोड़ी टपया. not here, no. I won't recommend Moin doing that. Moin, come on, you can. वो सामने कैमरे कैमरे में देख के. चिट्टा टट्टू कोड़ी टपया, टप चिट्टे टट्टू. All right, well done for that tongue twister. Good job, Moin. That's well done, buddy. Well done. Really proud of you. Very brave of you, Moin. एक अगर शोएब से भी करवा दें तो बड़ी शोएब, एक दफा तुम भी देख के कर दो यार. वो देख कर दो. All right, gentlemen, thank you. See you tomorrow. आप लोगों की खिदमत में कल हाजिर होंगे. अपना ख्याल रखिएगा. Good night.